Hi student, today we have to discuss the application of Gauss theorem. First application is electric field due to a point charge and deduction of Coulomb's law with the help of Gauss theorem. Consider there is a point O. At point O, charge Q is placed. Clear? At r distance, there is a point P where we have to calculate the electric field intensity. Imagine a sphere. Clear? This is a small area, direction of area vector is outward, and this is a point charge. This is positive. That's why direction of electric field is outward. Clear? Now we have to calculate flux link with the entire surface. Clear? EDA vector equal EDA cos theta. The value of theta is 0. That's why इंटीग्रेशन ऑफ dA cos 0 की वैल्यू 1 होती है. इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा EA एंड एरिया इज phi E इक्वल E इंटू 4 pi r स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1. बट फ्रॉम गॉस थ्योरम आपको क्या पता है? फाई ई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इट मीन ए इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर. ये आ गया स्क्वायर. एंड मान लीजिए एट पॉइंट पी अगर टेस्ट चार्ज रखा है, देन फोर्स इज गिवन बाय क्यू नॉट ई. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दीजिए, तो हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर. दिस इज अ कूलॉम्स लॉ. ओके, नाउ वी हैव टू स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to infinite length of wire. ये वायर है, charge is distributed over it. At r distance there is a point P where we have to calculate the magnitude of electric field intensity. Charge is distributed linearly, that's why linear charge density is lambda. Consider a cylindrical Gaussian surface. Okay, this is a surface S1, surface S2, surface S3. Clear? Direction of electric field intensity. This is a direction of area vector. Clear? Second surface में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन. एट पॉइंट P डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज आउटवर्ड and direction of area vector is also outward. Clear? Now we have to calculate the flux link with the entire surface. Okay, the length of the Gaussian surface is L. Then phi E1 equal closed integration of vector EDA EDA cos theta
यहाँ देखिए थीटा कितना बनना है, एंगल इज 90 डिग्री, एंगल इज 90 डिग्री, यहाँ थीटा इक्वल 0 डिग्री। तो अब 90 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 0। दैट्स व्हाई EDA into 0, टोटल टर्म कितना हो गया, 0। सेम ऐसे आएगा सेकेंड सरफेस में, phi E2 equal 0। Now flux linked with the third surface, phi E3 equal close integration of vector EDA cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, दैट्स व्हाई phi इंटीग्रेशन ऑफ EDA, DA को इंटीग्रेट करेंगे A आ जाएगा, और एरिया की वैल्यू होगी आपकी E into 2 pi r L। क्लियर ना। नेट फ्लक्स phi E equal phi E1 phi E2 प्लस phi E3। वैल्यूज रख दीजिए, 0 0 प्लस A into 2 pi r L, then phi E equal 2 pi r L into electric field। Clear? This is a equation 1। Okay, now from Gauss theorem what we will know, Gauss theorem से हमें पता है कि Q upon epsilon naught, चार्ज इज लिनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड ना, दैट्स व्हाई लिनियर चार्ज डेंसिटी निकालने के ये आ जाएगा चार्ज इक्वल लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, E into 2 pi r L equal lambda L upon epsilon naught, L cancel out, what will remain here, 1 upon 2 pi epsilon naught lambda upon r। क्लियर? अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इनटू r कैप। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आप क्या कीजिएगा, इसमें 2 से अप एंड डाउन मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की आपको वैल्यू पता है, 9 into 10 to the power 9 रख के कैलकुलेट कर लेंगे इसलिए। क्लियर? Now we have to study electric field intensity due to thin infinite plane sheet of charge। Okay, charge is distributed over the sheet, that's why surface charge density is sigma। This is a point P, this is a point P। Direction of electric field intensity outward, direction of area vector outward। यहाँ भी सेम, ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड आएगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आउटवर्ड आएगा। क्यों? बिकॉज दिस इज अ क्लोज सरफेस, दिस इज अ सरफेस S1 S2। नाउ वी हैव टू कंसीडर सरफेस S3 हियर। Direction of electric field intensity and area vector direction is that। Clear? Angle formed between them is 90 degree, and here theta equal 0 and here theta equal 0 degree। Now we have to calculate the flux link with the entire surface। एकदम पहले वाला पैटर्न अपनाएंगे, बहुत इजी है। phi E1 निकाल लीजिए, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर EDA। क्लियर? EDA cos थीटा, और थीटा की वैल्यू देखिए कितनी है, 0। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है।
देन इंटीग्रेशन ऑफ डी ए आपका आ जाएगा ई ए, फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही सेकंड सरफेस में भी देखिए जो एंगल फॉर्म हुआ है वो क्या है 0 डिग्री, दैट्स व्हाई फाई ई टू निकालेंगे तो ये भी आपका ई ए आएगा। क्लियर, सेकंड। एंड ऐसे ही फ्लक्स निकाल लीजिए थर्ड सरफेस से, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए वेक्टर इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए cos 90, cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। क्लियर, तो नेट फ्लक्स निकालना है पासिंग थ्रू द ऑल सरफेसेस, तो आप निकाल डालिए फाई ई इक्वल फाई ई वन प्लस फाई ई टू प्लस फाई ई थ्री। तो फाई ई इक्वल क्या हो गया ई ए प्लस ई ए प्लस 0, फाई ई इक्वल 2 EA। क्लियर, दिस इज अ फोर्थ। बट फ्रॉम गॉस थ्योरम, आपको गॉस थ्योरम से क्या पता है, गॉस थ्योरम से आपको पता है फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सरफेस चार्ज डेंसिटी देखिए क्या था क्यू अपॉन ए, तो क्यू इक्वल क्या हो गया सिग्मा ए, तो हम क्यू के प्लेस पे सिग्मा ए पुट कर दे रहे हैं, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 you will write as like that 2EA equal sigma A upon epsilon naught. This is cancel out. Now electric field equal sigma upon 2 epsilon naught. Clear? Any doubt? इसमें वेरिएशन देखिए कैसा आएगा, ऐसे आएगा। Clear? If the finite plane sheet has uniform thickness, तब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी आएगी, अगर यूनिफॉर्म थिकनेस का है तो plane sheet of uniform thickness. Clear? ओके, चार्ज इस पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है। क्लियर, एंड इससे सर्टेन डिस्टेंस पे एक यहाँ जस्ट आउटसाइड पे एक पॉइंट P है जहां पे आपको द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट सरफेस, ये भी आउटवर्ड, डायरेक्शन ऑफ सेकंड सरफेस से आप देखेंगे तो ये भी क्या आएगा आउटवर्ड ही आएगा। क्लियर, एनी प्रॉब्लम? अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो निकाल लीजिए, E इक्वल E1 प्लस E2। अभी आपने निकाला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कैलकुलेट कर लिए, आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? Now next heading, we have to study electric field due to too thin infinite parallel sheet of charge. Clear? Due to too thin infinite parallel sheet of charge. क्लियर? तो देखिए दो पैरेलल शीट बना लीजिए,
charge is distributed over it. Sheet 1, sheet 2. Clear? That's why surface charge density sigma 1, surface charge density sigma 2. Clear? This is a point P. This is a point P. This is a point P dash, where we have to calculate the electric field intensity. So at point P अगर आपको निकालना है, ड्यू टू फर्स्ट एंड सेकंड सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन आएगा आउटवर्ड आएगा. कैसा आएगा? आउटवर्ड आएगा. यहां भी सेम E1 E2 डायरेक्शन किधर आया? आउटवर्ड आया. एंड एट पॉइंट P डैश पे निकाल लीजिए. दिस इज अ E1, दिस इज अ E2. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट एंड सेकंड शीट. क्लियर? Now we have to calculate the electric flux in three regions. First region, second region, third region. Region 1, region 2, region 3. Clear? Now the magnitude of electric field intensity due to first and second sheet in region 1 में आएगी. In region 1. Clear? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो E इक्वल E1 प्लस E2, देन E इक्वल सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ये हो गया 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आ गया. एक ये निकल के आ गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अगर हम ये कहें कि सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 एक दूसरे के इक्वल है, तब देखिए इफ सिग्मा इक्वल सिग्मा 1 इक्वल सिग्मा 2, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा कितना हो जाएगा बाबू? 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 सिग्मा. इट मीन आपका आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. क्लियर? ये फर्स्ट रीजन का हुआ. आप थोड़ा थर्ड रीजन में देख लीजिए. तो थर्ड रीजन एंड फर्स्ट रीजन सेम है. थर्ड रीजन में भी बाबू इतना ही आएगा. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इन द सेकंड रीजन. तो सेकंड रीजन में अगर कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा? E1 माइनस E2. E1 माइनस E2 वैल्यूज पता है. सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. क्लियर? ना इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2. ये आपका आ गया. क्लियर? अगर सिग्मा इक्वल सिग्मा 1 इक्वल सिग्मा 2, देन 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा 0. इट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0. क्लियर? अभी तक हमने ये पढ़ा कि दोनों शीट जो है वो सेम चार्ज है. अगर मान लीजिए यह जो सेकंड वाली शीट है ये क्या हो? अपोजिटली चार्ज है. इट मीन अगर पॉजिटिव है तो दूसरी वाली शीट क्या हो? निगेटिवली चार्ज. तब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप निकाल सकते हैं दोनों पॉइंट पे. दिस इज अ पॉइंट P. अगर आपको इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो कैसे हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शीट 1 एंड शीट 2. क्लियर? यहां भी ऐसे. दिस इज पॉइंट P.
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट सीट आउटवर्ड, क्लियर, एंड ड्यू टू सेकंड सीट, तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। कैलकुलेट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P एंड P डैश। रीजन 1 में देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, क्लियर। तो हो जाएगा E इक्वल E1 माइनस E2, तो E इक्वल कितना आ गया बाबू, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, जो कॉमन दिखे उसे कॉमन ले लीजिए, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, क्लियर, ये रिजल्ट आया। अगर हम कहें सिग्मा 1 इज इक्वल टू द सिग्मा 2, क्लियर, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। इफ सिग्मा इक्वल सिग्मा 1 इक्वल सिग्मा 2, देन E इक्वल 0, क्लियर। तो एट पॉइंट P फर्स्ट रीजन एंड थर्ड रीजन में सेम आएगा, तो सेकंड रीजन में भी कैलकुलेट कर लिया जाए। इन द सेकंड रीजन एट पॉइंट P डैश E इक्वल E1 प्लस E2, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, इट मीन E इक्वल व्हाट, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, डब्बे में बंद कर दीजिए, क्लियर। इफ सिग्मा 1 इक्वल सिग्मा 2 इक्वल सिग्मा, देन E इक्वल 1/2 एप्सिलॉन नॉट into 2 sigma. The magnitude of electric field intensity is sigma upon epsilon naught. Clear? Any doubt to anyone? Now we have to study electric field intensity just outside the charge conductor. क्लियर, बहुत इजी है। ये कंडक्टर एज्यूम कर लिया भाई, कंडक्टर है तो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लीजिए, क्लियर, ऐसे एज्यूम कर लीजिए। Now we have to calculate electric field intensity at point P. तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड होगा क्योंकि क्लोज्ड सरफेस है, एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज आल्सो आउटवर्ड, क्लियर। वी हैव टू कैलकुलेट फ्लक्स लिंक विद द एंटायर सरफेस। इसके लिए आपको क्या करना है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर EdA। हर बार एक ही तरीके का काम है बाबू, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन पेड करना है, बहुत इजीली ये डेरिवेशन हो जाएगा। EdA cos थीटा, थीटा कितना है, थीटा की वैल्यू 0, दोनों पैरेलल है, देन एंगल फॉर्म बिटवीन देम इज 0, तो हो गया आपका EdA
dA, तो dA इंटीग्रेट कर लेते हैं, e को बाहर कर लेते हैं, क्लियर। dA को इंटीग्रेट करेंगे कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा, आपने गॉस थ्योरम से पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, Q upon epsilon naught, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया, दैट्स व्हाई अगर आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इक्वल क्या हो जाएगा, सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 you will write as like that A इक्वल सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एरिया कैंसिल आउट, E इक्वल कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। वेरी इजी डेरिवेशन इज दैट, ओके, थैंक यू।